Okay, good evening and hello everybody. Let's start with a new chapter, line and plane. This is for 12th standard HSC board, Maharashtra board के लिए. अब line and plane में we'll be seeing first the vector and the Cartesian equation of the line. अब parametric form of vector equation क्या होता है? Let's have a look at this. You have a line in the space that is passing through a point A. एक line है, vector equation find out करने का, it's passing through the point A से pass हो रही है. This is the line L that is passing through a point A, and this line is parallel to B bar. ये line को ये line is parallel, right? B bar को parallel है, and P कोई भी है, it's a variable point, ठीक है? Variable point on the line L, and उसका vector is R bar. So what you will have is R bar is equal to A bar plus lambda B bar. Lambda क्या है? Lambda is a scalar quantity, एक कोई भी number है, right? So scalar is a number, तो ये lambda B bar है. So let's have a look at this. When you know AP is parallel to B bar, AP is equal to lambda B bar. This we have seen in the vector case में देखा था कि अगर आपके पास दो line parallel है, तो there will be a scalar multiple of it, right? Parallel है या collinear है तो you'll have the scalar multiple, the scalar आपका lambda है. And AP, if you look at this AP क्या होगा आपका R bar minus A bar, बराबर, that is OP minus OA, clear? OP is R bar and AO is A bar, तो R bar minus A bar जब इधर आ जाएगा that will become A bar plus lambda B bar. सिंपल सा थ्योरम है, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं. You have to only remember that is line A के थ्रू पास हो रही है, P is the variable point, A के वेक्टर है A bar, P का R bar है, and this line is parallel to B bar. L करके जो line है that is parallel to B bar, and we have the equation R bar is equal to A bar plus lambda B bar. उसमें just start इससे करना है, AP is equal to lambda B bar. AP तो you know it, that is OP minus OA bar, R bar minus A bar, और A इधर आके देंगे. This is also called the parametric form of vector equation. Clear? आप लैम्बडा को एक्चुअली बोलते हैं पैरामीटर. क्लियर? नाउ लेट्स हैव अ लुक. सेकंड थ्योरम कार्टेशियन इक्वेशन है. कार्टेशियन इक्वेशन में आपके पास you have direction ratios A, B and C. Direction ratios A, B, C है, and Cartesian equation of a line passing through ये point से pass हो रही है. If it's passing through x1, y1 and z1, तो आपका Cartesian equation is x minus x1 upon A, that is equal to y minus y1 upon B, and that is equal to z minus z1 upon C. So this is the Cartesian equation of a line. ठीक है, ये आपके डायरेक्शन रेशियोज A, B and C है. ओके, रिमेंबर अगर B बार आपके पास A1 I कैप है प्लस B1 J कैप प्लस C1 K कैप है B बार का, तो आपके A1, B1 and C1 आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन. क्लियर? और कार्टेशियन इक्वेशन इफ दिस इज इक्वल टू, अगर इफ वी टेक इट एज अ लैम्डा, ठीक है, कार्टेशियन इक्वेशन को अगर अपन लैम्डा को इक्वल करते तो दिस आर कॉल्ड द सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन. तो इससे क्या हो जाएगा, if we let's take this x minus x1 upon a, ये पार्ट ले रहे सिर्फ, x minus x1 upon a is equal to lambda, this a will shift over here, तो x minus x1 is equal to a lambda हो जाएगा, and जब minus x1 उधर चलाएंगा तो this will become x is equal to x1 plus lambda a. Similarly वैसा y का भी हो जाएगा, आपका z का भी हो जाएगा. Clear? First a will go and multiply with lambda and then x1 either move y. This are called the parametric form of Cartesian equation. ये अपना कार्टेशियन इक्वेशन सिर्फ नॉर्मल ये फॉर्म में, पैरामेट्रिक फॉर्म में, इसका मतलब x इज इक्वल टू x1 प्लस y लैम्बडा या y इज इक्वल टू y1 प्लस b लैम्बडा एंड z1 इज इक्वल टू z इज इक्वल टू z1 प्लस lambda c. Now let's move on to the next theorem, that is equation of a line passing through two given points. अब अभी आपने पहले इक्वेशन क्या देखे थे, that was passing through a point and parallel to a line. ठीक है, तो एक पॉइंट के थ्रू पास कर रहे थे, दूसरे को पैरेलल थी, बट यहाँ पे व्हाट यू हैव इज पासिंग, द लाइन इज पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स, दैट इज A एंड B. तो A आपका है A बार एंड B इज आपका B बार, राइट? और आपके पास वेरिएबल पॉइंट क्या है, P. R बार आपके पास जो P है दैट इज द वेरिएबल पॉइंट ऑन द लाइन. तो आप तुमको पता है दिस आर
कोलिनियर, राइट, दिस आर कोलिनियर। ओके, तो आपको पता है whenever this is a collinear or parallel रहे तो क्या होता है, you have the scalar multiple। तो AP और AB का क्या हो जाएगा, AP is equal to lambda AB because the points are collinear, बराबर A P B are collinear points, तो AP is equal to lambda AB। अभी आपका AP क्या हो जाएगा, AP आपका हमेशा पता है AP is R bar minus A bar और AB आपका होगा B bar minus A bar, राइट। तो ये हो गया R bar minus A bar is equal to lambda B bar minus A bar। Clear? Move this A on the other side, you will have this equation जो अपना required equation है, that is R bar is equal to A bar plus lambda B bar minus A bar, right। तो R bar जो है अपना जो वेरिएबल पॉइंट P था, that उसका ये इक्वेशन ऑफ ए लाइन है, हाँ, और A bar के और B bar के थ्रू पास हो रही है, when it's passing through 2 points, so you're going to use this equation। Clear? इसको याद रखने का। and the equation of a line passing can be also expressed in form of R bar minus A bar, right, R bar minus A bar into B bar minus A bar is equal to 0। now Cartesian equation of line passing through 2 points, अभी अपने पहला Cartesian equation में देखे थे when it's passing through a point and you have the direction ratios और एक points के coordinate थे, now it's passing through 2 points, तो आपका Cartesian equation बनेगा x minus x1 upon x2 minus x1। x से पहले न्यूमरेटर में x से x1 माइनस हो रहा है, डिनोमिनेटर में x2 से x1 हो रहा है, दोनों तरफ x1 ही माइनस हो रहा है, दैट इज y minus y1 and y2 minus y1 is equal to z minus z1 upon z2 minus z1। ठीक है, ये 1 1 जो है वो माइनस हो रहे हैं, ऊपर you will have x and नीचे you will have, sorry, ऊपर you will have 1 and नीचे you will have 2, मतलब a नीचे you will also have 1, x से x minus x1 और नीचे you will have x2 minus x1। Let's look at the solve examples। Verify the point having position vector lies on the line r bar, ये दिया है, right। so this is, ये point अगर इसमें है तो let's take this as an r bar। ठीक है, solve this। ठीक है, r bar is equal to 4 I cap minus 11 j cap plus 2 k cap, ये r bar ले लिए and you know this a bar plus lambda, ये आपका b bar है। take I के terms together, that is 6 plus 2 lambda I is equal to 4i minus 11j is equal to, यहाँ का j is minus 4j plus 7 lambda j, तो इसका आपका क्या होगा, minus 4 plus 7 lambda is equal to minus 11। इसको सब कुछ सॉल्व करो, इफ यू शिफ्ट दिस साइड तो यहाँ क्या होगा, 6 हो जाएगा minus 6, राइट। 2 lambda is equal to 4 minus 6, that is 2 lambda is equal to minus 2, lambda is equal to minus 1 आ गया। सिमिलरली इसको सॉल्व करो, सेम चीज विल हैपन ओवर हियर, 4 इधर आके प्लस हो जाएगा and again you will get lambda is equal to minus 1, same in the third में, तो सब इसमें lambda के वैल्यू सेम आ रहे हैं, that means the given point lies on the given line, जो पॉइंट आपको दिया है वो लाइन पे है। सेकंड ऑल्टरनेट मेथड है r bar is equal to a bar plus lambda b bar। ठीक है, a bar को उधर शिफ्ट कर दो, r bar minus a bar is equal to lambda b bar। अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे r bar minus a bar, r bar minus a bar जब तुम सॉल्व कर रहे हो, you are getting this, that is minus 2 I cap minus 7 j cap minus 3 k cap, माइनस बाहर ले लो, you have 2 I cap plus 7 j cap plus 3 k cap, जो कि अपना क्या था, b बार था ये वाला। क्लियर, ये आपका b बार था विद नेगेटिव साइन, इसका मतलब क्या हो गया, बाहर minus 1 है, तो दिस विल बिकम minus 1 lambda and this is the scalar multiple of b bar। b से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, minus 1 is getting multiplied। ठीक है, तो इसका मतलब ये given point lies on the given line। Clear? Now let's look at it। Find the vector equation of a line passing through the position vector आपका ये and parallel है। फर्स्ट इक्वेशन अपन ने देखे थे, when it's passing through the point and parallel है तो क्या हो जाएगा, आपका ये फॉर्मूला यूज करेंगे, when it's parallel to one of the line and it's passing through the point, तो उसके लिए r bar is equal to a plus lambda b bar। just substitute the values and you will get the equation। ये आपका इक्वेशन है। Find the vector equation of a line passing through the point having the position vector ये and perpendicular to this two, ये दोनों को परपेंडिकुलर है, तो इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो इसको। when you do the cross multiplication, we have seen this thing last time, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का इसमें you solve it by using the determinants, you will have this minus 3 I cap plus 2 j cap plus k cap। calculations हम बता नहीं रहे हैं, is just because we have already seen this before। ठीक है, ये अपने पहले ही कैलकुलेशन सब देख चुके हैं। ठीक है,
तो ये जो आपको बी बार इंटू सी बार मिला है दैट इज -3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप। अगर कैलकुलेशन देखना है तो हमारे प्रीवियस वीडियो वेक्टर्स में देखो, वेक्टर्स में आई हैव एक्सप्लेन यू हाउ टू कैलकुलेट दी डिटर्मिनेंट्स, ये वो कैसे कैलकुलेट होते हैं। अब ये जो आपको वेक्टर इक्वेशन मिला है, पोजीशन वेक्टर आपको जो मिला है, दिस इज पैरेलल टू आपका ए बार, ये आपका ए बार है, दिस इज पैरेलल टू ए बार, तो आपका ए बार ये हुआ, दिस इज योर बी बार, तो यू कैन हैव द इक्वेशन आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्डा बी बार। ए बार के आगे इसको शिफ्ट कर दो एंड लैम्डा लिखे बी बार के आगे जस्ट शिफ्ट दिस। मतलब अगर आपके पास दो, अगर परपेंडिकुलर ये दोनों वेक्टर को है, तो परपेंडिकुलर है तो उसको क्या करेंगे, दोनों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, वी विल हैव द न्यू पोजीशन वेक्टर व्हिच विल बी पैरेलल टू दिस वन। ठीक है, now let's move on to the next sum. Okay, this was the equation, right? A bar अपने को ये मिला, तो और B bar अपने को, we got this B bar when we did the cross multiplication of the two position vector का. Now find the vector equation of a line passing through this point and is parallel to line joining points, ये दो points को parallel ले हो। तो अभी क्या करेंगे अपन, let's take this as A bar, ये आपका A bar हो गया, this is your B bar and this is your C bar, clear? अब ये दोनों को पैरेलल है, दिस इज बी एंड सी, तो लेट्स टेक बी सी बार, दैट इज सी बार माइनस बी बार, विल हैव दिस, ये अगर आपका आ गया तो लेट्स सब्स्टिट्यूट इनटू दिस, आर बार इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी बार, पर अभी अपन ने बी बार ऑलरेडी लिए है, तो लेट्स वो फॉर्मूला में दिस विल बी अ बी बार। अगर पैरेलल है तो व्हाट यू विल डू इज लाइक सी बार माइनस बी बार, इससे इसको माइनस कर दोगे, क्लियर? परपेंडिकुलर है तो व्हाट यू विल डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है? द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ए लाइन ये है एंड इज पैरेलल टू दिस, तो आपका हो गया आर, आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्डा बी बार। ए बार आपका ये है, बी बार आपका ये है, क्लियर? यहाँ इन लोग ने बी बार लिए, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेट्स टेक दिस एज एम बार और एन बार एंड लेट्स एन माइनस बी कर लो, ए एन एन माइनस एम कर लो, तो ये जो आपको मिला लेट्स कंसीडर दैट बी बार, तो आपको ये इक्वेशन समझ में आएगा। अभी फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू, कोऑर्डिनेट्स दिए, कोऑर्डिनेट्स दिए तो ऑलवेज व्हाट यू व्हेन यू पोजीशन वेक्टर में उसको कन्वर्ट करते हैं, राइट? तो मतलब ये क्या हो जाएगा, इसको अगर पोजीशन वेक्टर में कन्वर्ट किया तो आई जे के लगा देंगे प्लस साइंस के साथ, दिस इज आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। सिमिलरली ये भी आपका आई जे के साथ आएगा विद द प्लस साइन, ये आपके है। नाउ कोई ये फाइंड आउट करना है वेक्टर इक्वेशन, तो ये दोनों पॉइंट्स है, तो दैट इज बी बार माइनस ए बार एंड विल हैव दिस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये आ गया, तो दिस इज योर बी बार ले लो, क्लियर? तो ए बार आपका ये है एंड बी बार है, तो ए बार इज इक्वल टू ए प्लस, ठीक है, ए बार प्लस लैम्डा बी बार माइनस ए बार, दो पॉइंट्स के थ्रू पास हो रहा है ना, तो लैम्डा बी बार माइनस ए बार, तो आपको ये मिल गया, ए बार आपका ये है, जस्ट सब्स्टिट्यूट इन दिस इक्वेशन एंड विल हैव द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ए बार तो आपका ये आ गया है प्लस लैम्डा आ गया, बी बार माइनस ए बार अपन ने यहाँ से फाइंड आउट किए, पुट दैट वैल्यू। अभी कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, दिस इज द कोऑर्डिनेट दैट इज x1 y1 एंड z1 एंड आपके डायरेक्शन रेशियो 2 3 7 है, दैट इज ए बी सी, तो कार्टेशियन इक्वेशन आपका ये फॉर्म में आ जाएगा, क्लियर? x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c, ये कार्टेशियन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लो। डायरेक्शन रेशियोज आपके ए बी सी है, तो डायरेक्शन रेशियोज भी आपको दिए है, कोऑर्डिनेट्स भी आपको दिए, x1 y1 भी दिए, जस्ट सब्स्टिट्यूट इन द इक्वेशन। अब व्हेन इज पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के लिए तो उसका इक्वेशन भी आप सीन x माइनस x1 इज इक्वल टू x2 माइनस x1, तो ये आपका x1 y1 z1 है, दिस इज x2 y2 z2, just substitute in the equation, you will have in this form, denominators 1 1 आ गए तो उनको लिखने की जरूरत नहीं, you will have x minus x1 is equal to y minus 2, sorry x minus 1 is equal to y minus 2 is equal to z minus 3। सिंपल है, उसको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपल फॉर्मूला इसमें सब्स्टिट्यूट कर लो, छोटे छोटे मार्क्स के लिए इक्वेशंस आते हैं, just solve them। now find the Cartesian equation of a line passing through the point, ये point है आपको and it's perpendicular to ये दो vectors को, perpendicular है तो first thing what you want to do the cross multiplication, you will have this equation, ये equation आ गया तो this is your parallel to the required equation, तो आपके ये जो coordinate है -3 2 and 1 ये आपके direction ratios हो गए, clear? and passing through the point तो ये आपके हो गए x1
Clear? x1, y1 और z1. Substitute in this equation x minus x1 upon a. तो x1 आपका 2 था, तो x minus 2 हो गया, a आपका minus 3 है. Clear? y minus y1, y1 आपका 1 है and b is 2. Similarly z minus z1 upon c आपका 1 है and z1 आपका 3 है. ये अपना पुराना फॉर्मूला आ गया. एंगल फाइंड आउट करने के लिए व्हाट यू डू, cos थीटा इज इक्वल टू b बार इनटू b बार डॉट c बार अपॉन वैल्यू ऑफ b बार डॉट c बार. वैल्यू आपको बात हमने लास्ट टाइम भी बताया, अंडर रूट करके वी टेक द स्क्वायर्स ऑफ द कोएफिशिएंट के स्क्वायर्स ले लेते हैं. क्लियर? तो अगर आपको ये नहीं पता है तो पहले इसमें देख लो. आपके पास दिस इज योर व्हाट यू कॉल, ये आपका b बार है एंड लेट्स टेक दिस एज c बार लिया उन्होंने, तो b बार और c बार है. पुट दिस इन दिस थिंग, इसको सॉल्व कर दो. सॉल्विंग का आपको पता है, इसके आगे के नंबर से मल्टीप्लाई करके वी ऐड देम. दिस विल बी 2 minus 4 plus 2, so that will be 0. वेक्टर के इसमें देख लो हाउ टू सॉल्व दिस. वेक्टर के इसमें हमने सब पता है. इसको व्हाट यू ओनली टेक द कोएफिशिएंट. ठीक है, 2 और यहाँ 1 है, 2 1 जा 2 minus 2 plus 2 that is minus 4, तो 2 minus 4 हो गया. 1 into 2 is 2, so that will become 0. 0 upon 9 is 0. then थीटा अगर cos थीटा आपका 0 आता है तो 0 क्या होता है, थीटा is 90 degree. ठीक है, this is the way you're gonna solve the exercise 1 for lines and planes का exercise 1 solve कर दो. any doubt get back to me. ठीक है, we'll continue with the next topic in the topic in उसका सब topic है distance of a point from a line that will continue in the next video. Okay, that's all for today. Let's stop the session over here.